Hello students, today we will see the self-inductance and self-induction. So here in this concept you can see that there is a difference between self-inductance and self-induction, because self-inductance is what it is the property, while the self-induction is what it is the phenomena. So here you can see that one coil which is similar to what solenoid is connected across the battery of EMF E and variable resistance R. So here when current is passing through this coil, what happens? Here you can see that magnetic field is produced in the region near the coil. So here this magnetic field, you can clearly see that this magnetic field lines, or you can say magnetic flux, is linked with the coil itself. coil के खुद के साथ ही क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है. ठीक है, अब आप देखो ये फील्ड जो है, ठीक है, वो कॉइल के खुद से साथ लिंक हुआ है. तो अब अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगा या करंट की स्ट्रेंथ है वो वेरी करता हूँ, मतलब करंट चेंज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल के साथ लिंक है वो भी क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, एंड दैट चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस व्हाट, ईएमएफ. ये क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है. ओके, एंड दैट ईएमएफ इज known as what, self induced EMF. इसको क्या बोलते हैं, self induced EMF बोलते हैं. and this phenomena is known as what, self induction. so here you can see that करंट कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो वो खुद के साथ ही लिंक होता है. ठीक है, इट लिंक्स विद द कॉइल इटसेल्फ. ओके, एंड अगर करंट जो हम लोग कॉइल में चेंज करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स है, लिंक है, वो चेंज हो रहा है. ठीक है, और उसमें ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, सेल्फ इंडक्शन. इसीलिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन. सो हियर वी कैन से व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू कॉइल, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू कॉइल, magnetic field is produced around it. Okay, and the magnetic flux link with coil itself, coil के साथ ही क्या होता है, लिंक होता है. now if we increase, or you can say if we varies current strength, okay, then magnetic flux, we can say link with a magnetic flux which is linked with what, coil, changes. Okay, so due to this change in magnetic flux with the coil which is linked with a coil, what happens, EMF is induced in it. so EMF is induced in a coil. Okay, this EMF is known as a self-induced EMF. Is known as what, self-induced EMF. इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं. ठीक है, and this phenomena, okay, is known as what, self induction. and this phenomena is called self induction. so here you can see that if coil has made up of n turns, okay, and flux link with each turn is 5, then we can say total flux link with this coil is what, n5. so here if coil has n turns, okay, and flux link with each turn is 5, then total flux linked with coil, we can say, is what, is n5. okay, so over here this change in flux is produced due to what, we can say, flux यहाँ पे n5 जितना ये flux change होगा जब हम लोग करंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं. so here we can say this flux link with the coil is directly proportional to what, current passing through this coil. so here
we can say flux linked with coil is directly proportional to current passing through the coil. So here we can say total flux जो है वो कितना n5 है, so n5 is directly proportional to क्या है, I है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे, तो दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज व्हाट L. So here we can say here L is what proportionality constant, okay, and it is known as a here L, a proportionality constant is called सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। वंस अगेन इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L. सो हियर सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, इट इज द कंसेप्ट सेम एज लाइक अ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हमने रेजिस्टेंस देखा है, कैपेसिटेंस देखा है, अब यहाँ पे एक और आ गया है, कौन सा, इंडक्टेंस। तो दिस थ्री आर बेसिक एलिमेंट्स, ओके, ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बिकॉज जैसे रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक आपका प्रॉपर्टी है, और जो एलिमेंट जिसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको रेजिस्टर बोलते हैं, सेम एज कैपेसिटेंस इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड द एलिमेंट इन विच possesses the capacitance is known as a capacitor. सेम एज यहाँ पे आपको एक नया पैरामीटर मिला, एक नई क्वांटिटी मिली, वो कौन सी है, सेल्फ इंडक्टेंस। दिस प्रॉपर्टी, ओके, सो हियर वी कैन से एलिमेंट विच possess this property, which possess what, self inductance, that element is known as what, inductor। उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो ये इंडक्टर, ये वाला देखो आप, इंडक्टर में क्या देखने को मिलता है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे L को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, आप देखो, अगर मैं यहाँ से L को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो L का इक्वेशन क्या बनेगा, N5/I, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो हियर आई कैन से इट इज मेजर ऑफ flux linked with coil, or you can say flux linked with coil per unit current, okay, it is measure of flux passing through the coil per unit, through the coil per unit current. So it is the definition of what, self inductance, okay। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आप यूनिट निकालो तो इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो यूनिट बहुत ही इजी है। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है, और करंट का यूनिट है एम्पियर, तो ये हो गया आपका वेबर पर एम्पियर, ठीक है। और इसका एक और यूनिट है इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट विच इज हेनरी, सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल H। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। So self inductance is basically depends on three parameter. It depends on what, three parameter. The first one is it depends on first shape and size of coil. It depends on what, shape and size of coil. The second one is it depends on a property of a medium inside the coil. Coil के inside जो आपको ये कॉइल के इनसाइड जो मीडियम होगा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये वी कैन से डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ओके, इनसाइड, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ओके, इनसाइड द कॉइल। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N. Here you guys have to remember that it does not depend on flux, it does not depend on current, but it depends on what, number of turns, it depends on what shape and size of coil, it depends on property of a medium। हमने आगे रेजिस्टेंस देखा है, आप देखो रेजिस्टेंस में क्या इक्वेशन था, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। सो रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, शेप और साइज जो है रेजिस्टर का उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम एज यहाँ पे ये कंडक्टर के शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता था, तो सेम एज आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है आपका,
इंडक्टेंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इनसाइड द कॉइल एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स। सही है। यहाँ पे देखो हम लोग ये तीनों पैरामीटर के ऊपर इंडक्टेंस कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो हियर वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस in terms of what its dimension, in terms of number of turns. So here let's see, here you can see that how we will derive here the equation of self inductance. You can see that L is equal to what, n phi pi r. N phi is what total flux linked with this coil. So here अगर हम लोग यहाँ पे n phi को आप देख सकते हो, n phi का हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, n phi is equal to Li है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब मुझे यहाँ से L फाइंड आउट करना है, तो क्या है टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो मैं टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लिंक है वो, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल फ्लक्स ओके लिंक विथ कॉइल ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, स्मॉल l जितनी। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा आपको देखो n फाई। ठीक है। अब n एज इट इज, फाई कितना होता है आपका b इंटू ए। ठीक है। तो n b ये आपका हो गया। अब देखो n क्या होता है, वी नो दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, स्मॉल n। ओके। तो कैपिटल N को अगर सब्जेक्ट बनाया तो क्या होता है वो n इंटू एल। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ n इंटू एल, वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके। बी मैग्नेटिक फील्ड, आप देखो ये इसकी वजह से, कॉइल की वजह से इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज व्हाट वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड। तो हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया था चैप्टर नंबर 4 में, कितना था म्यू नॉट एन आई। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। ठीक है। अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसकी रेडियस में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ आर जितनी है। ठीक है। तो ये इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर जितना। ठीक है। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हियर n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके। r इज व्हाट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। ओके। सो हियर एन और आर क्या है हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका पूरा इक्वेशन क्या बना, एन फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका म्यू जीरो एज इट इज, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर। ठीक है। आई एज इट इज, एल बी एज इट इज, इंटू आपका क्या है पाई आर स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 मेरे पास है, 1 एंड 2 को क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो इस दोनों को कंपेयर करते, देखो इसका LHS एन फाई है, उसका भी एन फाई है। यहाँ पे देखो कंपेयर करने पे क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ कि एल आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से आप देखो एक आई जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो एल का इक्वेशन क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके। इंटू क्या बचा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर कैपिटल एन के टर्म में मुझे यही इक्वेशन चाहिए तो देखो कैसे निकाल सकते हैं आप, म्यू नॉट एन क्या है आपका, कैपिटल एन बाई एल। ठीक है। ये स्क्वायर एज इट इज इंटू स्मॉल एल, यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक एल है, यहाँ पे ये एल के साथ एक न्यूमरेटर का एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एल डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बना देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर। ओके। यहाँ पे आप देखो ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एक एल डिनोमिनेटर में बच गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। So here you can see that mu naught is what, permeability of a medium. So here we can say it depends on property of medium inside the coil. N is what, number of turns. So here we can say self inductance depend on number of turns. Okay. Once again here pi r square is the area, L is a length. So we can say it depends on what, shape and size of coil.
Okay, so here overall self inductance we can say depends on what shape and size of coil. It depends on property of medium inside the coil and number of turns n. Okay, now ये हो गया आपका self inductance. Now we will derive the equation of what सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अभी हमें यहाँ पे अगर मुझे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हियर अगर मुझे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे. देखो ये आपका ईएमएफ एज इट इज. देखो ये आपके पास इक्वेशन है एन फाई इज इक्वल टू एल आई का. अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन, अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो. अभी यहाँ पे डायरेक्टली डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है. एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये डी बाई डी टी ऑफ क्या होता है टोटल फ्लक्स एन फाइव होता है, ठीक है. तो अगर मैं एन फाइव की जगह पे एल आई रखता हूँ तो डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा एल आई. एल इज व्हाट, इट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली दिस थ्री पैरामीटर. तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा था, ऑब्वियसली करंट की स्ट्रेंथ वेरी कर रही थी, आई वेरी कर रहा है, तो एल को बाहर रख देते हैं तो ये क्या हुआ डी आई बाई डी टी, ठीक है. सो हियर वी कैन से द ईएमएफ self-induced EMF is equal to what minus L di by dt, where di by dt is what rate of change of current, okay, and L is what self-inductance. Here negative sign indicates what presence of Lenz law. This self-induced EMF is also known as a back EMF. इसको क्या बोलते हैं back EMF भी बोलते हैं. Okay, so this EMF is also known as a बैक ईएमएफ. अब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर इसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं. सो हियर आई कैन से इट अपोजेस व्हाट एनी चेंज इन करंट व्हिच प्रोड्यूस द ईएमएफ. करंट चेंज की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये ईएमएफ क्या करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को क्या करता है अपोज कर रहा है, ठीक है. मतलब जिस थाली में खाता है उसी थाली में क्या कर रहा है छेद कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ. सो हियर वी कैन से दिस ईएमएफ इज आल्सो नोन एज अ बैक ईएमएफ बिकॉज it opposes any change in current which produce it. जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसी को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, ठीक है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ. अगर हम लोग यहाँ से एल को अभी सब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एल को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो एल का इक्वेशन क्या बनेगा माइनस ई डी आई बाई डी टी, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग 1 हेनरी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि 1 हेनरी कब होगा. अगर आप सोचो अगर यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है और 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे अगर वो 1 वोल्ट है, ठीक है, तो आपकी एल की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी 1 हेनरी आएगी. ऑफ कोर्स ये कितना होगा 1 हेनरी होगा. सो हियर वी कैन से इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, okay, and EMF induced in the coil is 1 volt, then self inductance of the coil is said to be what 1 Henry. तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा 1 हेनरी होगा, ठीक है. चलो अब यहाँ तक तो ये हो गया 1 हेनरी का डेफिनेशन, ठीक है. अब यहाँ से अगर आप यूनिट निकालो तो क्या बनता है, देखो इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है. ये क्या हो गया एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर आएगा एम्पियर एज इट इज. तो यहाँ से आप देखो ये हो गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है. अब देखो मैं यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ. इसके डायमेंशंस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ से इजीली निकल सकते. एल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है. तो डायमेंशंस ऑफ एल क्या लिख लेंगे, डायमेंशंस ऑफ एल देखो कितना होगा, ये वोल्ट है, वोल्ट का क्या होता है भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है m1L2T-3A-1, ठीक है, इनटू क्या है सेकंड, सेकंड का मैं कर देता हूँ T1. और नीचे आप देखो नीचे आपके पास क्या है करंट एम्पियर, ये एम्पियर एज इट इज,
चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, m1 एज इट इज रहेगा आपका, L2 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो t माइनस थ्री है, यहाँ पे t प्लस वन है, मतलब t माइनस टू बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एम्पियर की माइनस वन पावर है, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर कितना बन जाएगा, माइनस टू। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। अब ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस तो पढ़ लिया, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया। अभी यहाँ पे ये जो सेल्फ इंडक्टेंस जिस एलिमेंट में देखने को मिलता है, एलिमेंट विच possesses the property of self inductance, ओके, दैट एलिमेंट इज नोन एज व्हाट, इंडक्टर। उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंडक्टर, ठीक है। चलो तो इंडक्टर देखते हैं यहाँ पे कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। चलो याद रखो बच्चों, इंडक्टर इज व्हाट, एलिमेंट, while self inductance is what, it is the property. So here we can say element which possesses self inductance, which possesses what, self inductance is called इंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। चलो इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है, देखो सिंबल काफी इजी है, ये हो गया आपका इंडक्टर का सिंबल। सो हियर वी कैन से फिगर शोज सिंबल ऑफ इंडक्टर। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैसे होते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर when inductor is connected in a closed circuit, so end from which current enters is taken as positive, and a end from which current leaves, that end is taken as what, negative, okay. So it is the method how we can calculate EMF, or you can say self induced EMF across the inductor. Once again, whenever inductor is connected in a closed circuit, the end from which current enters, that end is considered as a positive, and the end from which current leaves, okay, that end is considered as a negative end, okay. And here the EMF developed across this inductor is what, E is equal to what, minus L di by dt, okay.